Hi everyone, I welcome you all to the Elegant classes. And this is the another or second video lecture where we are talking about the reading, comprehension, and the language questions, English language questions. Okay. So these questions are very important for the people, those are preparing for exams like SAT or any management exam. Sorry, CAT and any management exam. So in my last video, I could see the comment where people are saying, kindly make it more explicit, kindly explain more as we are confused. So here in this video, I tried to clear each and every point. So stay tuned and watch the video till last. Fine. This is the first question. And this question says, select the most appropriate meaning of the given idiom. Okay, so as I said in the previous video also, idioms एक ऐसे sentences होते हैं जिनका directly कोई meaning नहीं होता, all right? Breaking a ice or break the ice. It doesn't mean आप actual में बर्फ तोड़ रहे हो, right? Break an ice, it means in language or in idiomatic language, ice is considered as a problem, like a kind of एक बीच में जो रुकाव होता है उसके लिए. So ice is kind of a thing which is not letting you do anything, right? So इस ice को अगर break करना है तो यानी आप उस impossible चीज को हटाकर अब जो है अपने काम को कर पा रहे हो, right? Breaking a ice, it means if you have to eliminate option. I told you whenever it comes to MCQs, you always have to go for the elimination options. You always can, eliminate option जिससे आपका wrong options को आप हटा सकते हो and you can quickly get down to or you can quickly jot down the right option. So to cry loud, to cry out loud. So इसका मतलब तो ये है ही नहीं break an ice. No, it doesn't mean it, like it doesn't make the sense here. To make an excuse नहीं होता इसका मतलब as I said कि ice का मतलब है कि एक आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये idiom है. इसका मतलब है कि आपके कम्युनिकेशन में कुछ स्टॉप्स थे, लाइक पॉजेस थे, अब आपने उन पॉजेस को हटा दिया है, उन ब्रेक्स को हटा दिया है, राइट? नाउ to get wet, no. So it's to start a conversation. Yeah, exactly. It means to start a conversation, to kickstart a conversation, which is meaning the breaking ice. Okay. Hope that is clear to you. Okay, the next question that we are taking is Rajkumar. Okay, see, this question is from the direct indirect speech. As I said, those questions can be said narration or can be direct indirect. तो इसके लिए मैंने आपको लास्टली बोला था you have to go through rules once. I think it's very much clear. What the rules I was telling earlier also and what I intend you to learn, means I advise you to learn, वो मैं भी बता दूंगी by the time, but stay like here. If you focus, you will understand what exactly the changes we are making. See, राजकुमार said, उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास और ये कॉमास कुछ लगते हैं, ठीक है, इनको हटा के हम दैट में कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग, ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक. ये जो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं. एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, ओके, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच. What do you understand by reported verb? Reported verb होता है जिस फॉर्म में वो जो रिपोर्ट है उसको बोला गया है. जैसे हम बोलते हैं ना, उसने मुझे कहा कि वो नहीं आएगी, हम यही बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पे रिपोर्टेड जो वर्ब है मेरा वो ये सेड है. सेड इज माई रिपोर्टेड वर्ब. तो क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अगर इस सेड के बाद ये, क्योंकि अभी इनडायरेक्ट फॉर्म है, सॉरी ये डायरेक्ट फॉर्म है, ओके, डायरेक्ट फॉर्म में किसी ने डायरेक्टली बोल दिया है कि राजकुमार ने बोला वो नहीं आएगा और वो गाना सुनता है, काइंड ऑफ दिस सेंटेंस. तो जब कोई डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि उसने कहा, राइट? तो यहाँ पे राजकुमार सेड. लेकिन अगर इस डायरेक्ट सेंटेंस में इस तरीके से लिखा होता, राजकुमार ने मुझे कहा, राजकुमार सेड टू मी. अगर सेड टू मी होता ना, सेड के बाद एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, देन हम इस सेड को
चेंज करके टोल्ड कर देते। सो फॉर दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि भाई रूल्स को एक बार पढ़ लो, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल टू क्लियर इन दिस सोल वीडियो। एज यू नो नाउ, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, एंड यहाँ पे सेड है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, तो मुझे सेड को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना है। राजकुमार सेड तो सेड ही रहेगा, सब में सेड ही दिया हुआ है, फाइन। ये हट के दैट लग जाएगा, दैट भी सब में दिया हुआ है। सो व्हाट इज द चेंज, मुझे इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना पड़ेगा, राइट। नाउ आई जस्ट वांट टू गो थ्रू यू द रूल्स ऑफ इट. Just for your understanding, I have explained here few rules. I just want you to take a glance of it. अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको, जो बाद वाला सेंटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। सो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। डू यू गेट माई पॉइंट, राइट। सो when you have a reported speech in present continuous, that would be directly converted into past continuous. Like here, he is listening to the music, this is present continuous, right? Past continuous इसको convert करेंगे। So past continuous में क्या हो गया है इसका रूल, इसका रूल हो गया है सब्जेक्ट के बाद was verb लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा ing ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। बट जब आप देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज करते हैं ना इसको, तो इज ए मार के प्लेस पे हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, राइट, विच इज द ओनली चेंज। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। सो वॉज, राजकुमार सेड दैट ही वॉज, हु इज ही हियर, राजकुमार अपने बारे में बात कर रहा है। He was listening to the music. Okay, fine. Rajkumar said that he is being listening to the music. Being तब लगता है जब passive voice होता है, wrong option. Must be का कोई sense ही नहीं है. Should be no sense. Only one right option, which is A. Without learning of the rule of direct, indirect या active, passive का आप questions नहीं कर पाओगे. That's why I suggested you to go through and learn the rules first. Okay, the next question that we have is select the correct passive. Passive में भी I think I told you थोड़े glimpse दिए थे कि क्या होता है passive voice, right? But here let's see the question. The company has offered a job to the candidate. क्या किया? Company is the subject, ठीक है? Company ने एक action किया, that company offered what? A job to the candidate. Okay, this is the thing. नाउ पैसिव में क्या होता है, ऑलवेज जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। एंड इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके आई डिडंट टेल यू, सी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वर्ब के डायरेक्ट बाद लगे होते हैं, जो वर्ब को रिसीव करने वाले आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और जो उसके बाद जो दूर में कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आएगा, एग्जैक्ट लाइक ये है या ये है, तो हम बोलेंगे द कंपनी ऑफर्ड व्हाट, कंपनी ऑफर्ड अ जॉब, किसको की, टू अ कैंडिडेट। आपको क्या लगता है कौन सा जो ये ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा दूर है? अगर मैं कैंडिडेट हटा भी देती और मैं सिर्फ इतना बोलती कंपनी ऑफर्ड अ जॉब, तब भी वो सेंस करता, राइट। तो जॉब इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ माई सेंटेंस, जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट को जॉब मिली विच इज द अनदर एडिशनल डिटेल, दैट्स व्हाई इट बिकम्स माई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता आगे पैसिव्स में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ये दो आपके एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। तो जॉब हमारा ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ठीक है, फाइन। नाउ आई हैव टू चेक विच टेंस ऑफ द पैसिव वॉइस इज देयर, हैज है, यानी कि ये परफेक्ट टेंस में बोला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आई थिंक यू नो द रूल, रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस क्या होगा, बीन, राइट।
then verb third form, been verb third form, and then object. एंड यू नो कि ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पोजिशनिंग जो है पैसिव वॉइस में चेंज होता है. तो हियर बिकॉज माय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जॉब, जॉब आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे विच इज देयर, राइट. एंड कंपनी जो मेरा सब्जेक्ट था वो पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे जो कि यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ अब बस मुझे बीच का ये जो स्ट्रक्चर है ये मैच करना है. डज इट मेक सेंस और नॉट? एज आई सेड इट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आना है. तो यहाँ पे हैज हैव नहीं है, वॉज लिखा हुआ है विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन. यहाँ पे द जॉब हैज बीन ऑफर्ड, इट मीन्स V3 to the candidate by the company. Good. So this becomes the right option. I hope it is clear to you. I will repeat one more time this question. In active to passive जो हम convert करते हैं active to passive, remember one thing, आपका जो positioning of subject है, for example, I say I eat an apple. Okay. तो मैंने जो कुछ भी खाया, मैंने apple खाया, apple is my direct object. पर अगर मैं बोलती हूँ I eat an apple with my friend, विद माई फ्रेंड जो है वो एडिशनल डिटेल है, वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है. नाउ ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेरा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम ऑब्जेक्ट बन जाएगा. एंड ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा सेंटेंस का व्हेन आई हैव टू कन्वर्ट दिस एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव. दिस व्हाट आई सेड. नाउ फॉर द डिटेल डिस्क्रिप्शन आई बिलीव आपको रूल्स एक बार गो थ्रू करने चाहिए. सो हियर as I said, it is the present perfect tense का ये sentence है. कैसे पता चला मुझे present perfect tense का है? क्योंकि has के बाद V3 लगा हुआ है active form में. अब तीन चीज I have to keep in mind कि मेरे को subject और object को interchange करना है positioning में. जो मेरा object है वो मेरा subject बन जाएगा और जो मेरा subject है वो मेरा object बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद मुझे क्या देखना है? I have to check कि भाई हैज हैव के बाद मेरे को पैसिव वॉइस में ये वाला जो हैज हैव वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पैसिव में कैसे चेंज होगा. तो पैसिव में चेंज होता है बाय यूजिंग हैज हैव बीन प्लस V3. तो देखो, कंपनी हैज ऑफर्ड, एक्टिव. पैसिव क्या हो जाएगा? जॉब पहले आएगा, राइट. जॉब इन दो ऑप्शंस में पहले आ रहा है. अब हैज हैव मुझे चेक करना है. यहाँ हैज हैव नहीं है, गलत ऑप्शन. यहाँ हैज है, कैन बी करेक्ट. बीन भी आया, ओके. ऑफर्ड V3 आया, नाइस. टू द कैंडिडेट, ओके. इसमें तो मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ मैच कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज माय करेक्ट ऑप्शन. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. So for your understanding, I have pasted here the active and passive. देखो, has have है तो has have been V3 आया. Okay. Moving to next. Part of the following sentence have been given as option. Select the option that contains an error. एक error हमको ढूंढना है इस sentence में. So I told you whenever you have to find an error, आप दो चीजें कर सकते हो. आप subject और verb का जो agreement है वो check कर सकते हो. ठीक है. आप कंजंक्शंस चेक कर सकते हो कि मेरा जो कंजंक्शंस है, कनेक्टर्स है, वो गलतली मतलब इट मींस रॉन्गली प्लेस तो नहीं है, कॉमास तो नहीं है बीच में. ठीक है. गलत तरीके से तो नहीं लिखा हुआ है कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे एंड लिखा हुआ है कहीं पे, तो एंड से पहले कॉमा है कि नहीं, ये सारे थोड़े बहुत आपके एरर्स होते हैं. यू हैव टू कीप इन माइंड. टेंस का एरर हो सकता है कि गलत सलत टेंस लिखा हो, तो that you have to check what the grammatical structures are given. Now if you could see this, despite feeling tired, ठीक है, ये तो correct sentence formation है क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है, despite feeling tired, decided to go for a run in the park. Fine, it was a beautiful day. तो ये कैसे फ्रेम हो सकता है? यू कैन सी दिस, डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड, ये भी करेक्ट है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं. ये एक सेंटेंस के पार्ट नहीं है. ठीक है.
ये अलग अलग सेंटेंस के पार्ट भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड द एरर, किसमें एरर है। डिसाइड्स टू गो फॉर अ रन इन द पार्क हो सकता है, ये क्योंकि ये इस सेंटेंस का पार्ट हो, बट अगेन इसमें कोई एरर नहीं है। एज इंडिविजुअल अगर मैं इसको देखती हूँ तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। It was a beautiful day, no error, so it means definitely it does not have any error. D is my right option. I'll show you how. If you can see the screen here, it shows you कि जो despite है, देखो, the explanation is given. Despite feeling tired, an introductory phrase है जिसमें जो person है वो बोल रहा है that despite feeling tired. Now, अब ये सारा कहाँ से आई? If you have read the question, wait, here. You read the question here. This is the option which is given. Despite feeling tired, Sarah decides to go for a run in the park because it was a beautiful day. As I said कि जरूरी नहीं है एक ही सेंटेंस का पार्ट हो। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एरर आपको ढूंढना होता है, एक सेंटेंस पूरा भी दिया हो सकता है और मे बी अलग अलग सेंटेंस के पार्ट भी ऑप्शंस में दिए हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड एन एरर, राइट। यहाँ पे ये एक ही सेंटेंस का पार्ट है, सो वी हैव टू चेक। डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड, सारा डिसाइड्स टू गो फॉर अ रन इन द पार्क, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। देयर इज नो एरर, राइट। तो जब आप चेक करोगे इसको कि एरर है कि नहीं है, लेट मी शो यू दिस। सारा डिसाइड्स टू गो फॉर अ रन इन द पार्क, दिस इज द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। एंड मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सॉरी, डिपेंडेंट सेंटेंस। देखो, एक सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो मेन क्लॉज होता है आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस करता है। अपने आप में कंप्लीट क्या सेंस कर रहा है? सारा मेक्स अ डिसीजन टू गो फॉर अ रन, राइट। ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। और व्हाट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज हियर, और डिपेंडेंट सेंटेंस क्या है? डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड, कि भाई देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, हाँ वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी, इस तरीके से समझो इसको, वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी उसने रन पे जाने का सोचा। सो सारा मेक्स द डिसीजन टू गो फॉर अ रन, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड, ये एक तरीके का सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है यहाँ पर, राइट। बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट प्रोवाइड्स अ रीजन। अब ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये रीजन दे रहा है कि क्यों उसने डिसाइड किया थके होने के बावजूद भी रन पे जाने का, बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। दिस इज ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट क्लॉज हियर, ठीक है, विच प्रोवाइड्स अ रीजन और जस्टिफिकेशन बिहाइंड द एक्शन ऑफ द सारा। कंजंक्शन है बिकॉज, तो कंजंक्शंस, दैट्स व्हाई आई सेड कि एक बार पढ़ लेना आप कनेक्टर्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, ताकि आपको मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज का डिफरेंस समझ में आए एटलीस्ट। I'll tell you in short, in few lines. मेन क्लॉज ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉज वो सेंटेंस होता है जो किसी कनेक्टर के थ्रू जुड़ा होता है मेन क्लॉज से। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज, या फिर एज आई हैड फीवर। क्या है बिकॉज या एज मैंने क्यों ऐड किया है? ताकि मैं एक रीजन बता सकूं। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दिस इज माई कंप्लीट क्लॉज, मेन क्लॉज। और उस वजह से जो एक्शन हुआ है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि एक कंजंक्शन से जुड़ा होता है। बिकॉज इज अ कंजंक्शन हियर, राइट। दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सो ओवरऑल अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप देखोगे, ओवरऑल द सेंटेंस इफेक्टिवली कन्वेज दैट सारा चूजेस टू गो फॉर अ रन डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड। हालांकि वो थकी हुई थी, बट शी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक और अ रन। द रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन वाज अ ब्यूटीफुल डे, हेंस द sentence does not have any error. Hope it is clear to you. Okay, choose choose the incorrect spelling of the word. तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो कि
ये तो बहुत इजी है। आई थिंक इफ यू आर अवेयर ऑफ द स्पेलिंग्स यू मे you can choose the wrong spellings even as incorrect, like as option, क्योंकि incorrect spelling ही choose करने की बात कर रहा है। accommodate right spelling है, ये भी right है, ये भी right है, only this is the wrong। क्यों? यहाँ पे a आना था। relevant options होता है ना, so that is a thing which you have to check, right? Whenever it comes to the questions, those are asking you to, figure out the wrong spellings. You always have to check कि भाई right spellings कौन सी हैं. As you can see here, the accommodate. Accommodate has a right spelling. Occurrence की भी ठीक है, embrace की भी ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, इसलिए इसको opt किया हमने. Next. Select the most appropriate option to substitute the highlighted statement in the given. Okay, fine. ये वाला error है, इसकी place पे हमें इसमें से कुछ opt करना है. The teacher said that the exam will be rescheduled due to unforeseen circumstances. भाई reschedule करना पड़ रहा unforeseen circumstances की वजह से। unforeseen होता है कि unpredictable issues आ गए कुछ, उस वजह से reschedule करना पड़ रहा है। So टीचर सेड दैट द एग्जाम, ये तो सेम ही रहेगा, विल बी रीशेड्यूल। अगर आप रीशेड्यूल की डेफिनेशन को आप पढ़ो तो वो बोलता है कि पोस्टपोन करना, वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं, राइट? रीशेड्यूल तो वो करेंगे पर वो कैंसिल भी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो पुश कर रहे हैं डेट को आगे, वो पोस्टपोन कर रहे हैं। विल बी हेल्ड ऑन द शेड्यूल डेट, शेड्यूल डेट के बारे में कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे, दैट व्हाट वुड बी द शेड्यूल डेट। हो सकता है ये, बट इट्स नॉट दैट एक्यूरेट ऑप्शन। विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड टू एन अर्लियर डेट, ये भी हो सकता है बिल्कुल, बट जो रीशेड्यूल्ड है ना ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन, इस पे अगर हम स्ट्रेस करें तो वो पोस्टपोन्ड की तरफ आपको थोड़ा सा हिंट देगा कि भाई कोई प्लान्स आपके पोस्टपोन्ड होते हैं तो वो किसी अनफोर्सीन रीजन की वजह से होते हैं, ठीक है। Here we will check the explanation. The most appropriate option is will be postponed to the earlier date. Reason: this option accurately conveys the exam will be rescheduled to a different date due to unforeseen circumstances. Postpone, as I stressed again and again to this word, the word postpone implies delay, which aligns with the situation described with the original sentence. ठीक है? The most closest, I should say, क्लोजेस्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, तो पोस्टपोन सीधा सीधा आपको बताता है रीशेड्यूल के बारे में, हेंस यू कैन पुट दिस ऑप्शन एज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट, rearrange the part of the sentence in the correct order. I told you it's very important to understand the main clause. अगर आपको मेन क्लॉज पता चल गया ना इसमें कि मेरा मेन क्लॉज क्या है, सो यू कैन इजीली, या इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर मैं बोलूँ, इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर आपको पता है, सो यू कैन पिक द सेंटेंसेस एंड कैन रीअरेंज द सेंटेंसेस। मेन क्लॉज के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड हैव अ नाउन एट बिगिनिंग, क्योंकि नाउन है तो आप एग्जैक्टली रिलेट कर सकते हो उसको कि भाई ठीक है ये फ्रेश स्टार्ट हुई है इस पैराग्राफ की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, फिर मैं बोलूंगी इट इज मेड अप ऑफ XYZ। सो अब मैंने ताजमहल के प्लेस पे इट यूज किया, इट मींस आई स्टार्ट यूजिंग प्रोनाउन फॉर द सेम, राइट? दैट्स व्हाई मेन क्लॉज जब वो होता है तो उसमें एक नाउन होता है। सो लेट्स रीड इट। द वेट कॉलेज of his choice, his कौन है इसमें, still we don't know, we can't put as the first clause। being a vet also he was, okay, devastated when he failed to get into, he has always been passionate about। इसमें किसी में भी नाउन नहीं है तो हमें एक कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। so see, he has always been passionate about being a vet, so he was the veterinary college of his choice, devastated when he failed to get into। He was always been passionate about being a vet,
So he was devastated when he failed to get into. अच्छा, ये आएगा. He was devastated. इसमें देखो एक चीज बताओ, एक ट्रिक है यहाँ पे. देखो, he was always being passionate about being a veterinary. अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का रिलेशन पता चल गया ना, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन सीरियसली. ही हैज ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट व्हाट. अब एक ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, राइट? डेविस्टेटेड तो उसका होगा नहीं पैशन. द वेटरनरी कॉलेज ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, ऑब्जेक्ट है बट सेंस नहीं कर रहा. बीइंग अ वेटरनरी, he was passionate about being a veterinary, so he was what? Verb है, object चाहिए. Devastated when he failed to get into the veterinary college of his choice. ठीक है. Hence the order of the sentence would be, first comes this, one, two, three, four. This way it is. So S, Q, R, P, B. Moving to next. This is the explanation here. Being veterinary, he was always being passionate about the veterinary college of his choice, so he was devastated when he failed to get into. ठीक है, इस तरीके से ये explanation दिया हुआ है. Next question. Select the most appropriate collecting word to fill in the blank. ठीक है, कुछ नहीं है, just we have to relate which word makes sense here. The company decided to. फर्स्टली आपको वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए. इनिशिएट होता है स्टार्ट करना, कमेंस होता है स्टार्ट करना, एक्सपेंड होता है बढ़ाना, टर्मिनेट होता है स्टॉप करना. ठीक है. द कंपनी डिसाइडेड टू डैश इट्स ऑपरेशन इन द रीजन ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस. नेगेटिव कंडीशन के बारे में बोल रहा है तो एक्सपेंड तो करेंगे नहीं, बट ऑब्वियस. ठीक है, एक्सपेंड हो सकता है कि भाई, नहीं नहीं, एक्सपेंड नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियल लॉस तो हो रहा है उनको ऑलरेडी. प्रॉफिट होता तो एक्सपेंड करते, नहीं, रॉन्ग ऑप्शन. कमेंट्स नहीं होगा, शुरू नहीं करेंगे, इनिशिएट नहीं करेंगे, टर्मिनेट जरूर कर सकते हैं. कंपनी डिसाइडेड टू टर्मिनेट इट्स ऑपरेशन इन द रीजन ड्यू टू द फाइनेंशियल लॉस. ओके, लेट्स चेक द आंसर्स. टर्मिनेट. Okay, most appropriate antonym. Antonym are the opposite words of the given. The professor's lecture were often incomprehensible. Comprehensible होता है आसानी से समझ में आ जाने वाला. ठीक है. Incomprehensible होता है जो समझ में ही नहीं आता. To his students. इनके मीनिंग क्या है? इंटेलिजेंट का मीनिंग आपको पता है. डू यू नो ट्रांसपेरेंट इज ऑल्सो. अब इन दोनों वर्ड्स में समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स व्हेन दे आर कंफ्यूज बिटवीन टू बिल्कुल नए सेंटेंस, टू बिल्कुल नए वर्ड्स, वो ना तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं. बट इट्स ऑलवेज फाइन इफ यू वुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. इन दोनों वर्ड्स के अगर आप मीनिंग को देखोगे, क्या होता है इन दोनों वर्ड का मीनिंग. आई एम गिविंग यू 5 seconds टू थिंक अबाउट. All right, I think now you have already searched about the meaning of these words. आपको 5 seconds मैंने दिए थे. So intelligent means बहुत अच्छा सा intelligence जो होता है जिसके पास. Okay, for the person we use this term intelligent. For example, intelligent person, right? Transparent. ये antonym पूछ रहा है incomprehensible का, जो कि जटिल है, already काफी tough है. अगर मैं इस वर्ड को देखूं, सी, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एनिग्मेटिक. एनिग्मेटिक का मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि टफ. देन परप्लेक्सिंग का मीनिंग भी वही होता है, काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. तो अगर आप देखोगे इनकॉम्प्रिहेंसिव, वो ऑलरेडी वेरी टफ है स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंड करना, वो पहले ही उलझा हुआ है. तो इनिग्मेटिक एंड परप्लेक्सिंग अगर हम वर्ड्स को उठाते हैं, दोज वुड बी द सिनोनिम्स, राइट? हमको तो एंटोनिम देखना है. तो आई बिलीव इंटेलिजेंट तो कोई सेंस ही नहीं कर रहा है इसमें, तो ट्रांसपेरेंट वी कैन keep as option, right? Let's check the answer once. Yeah, incomprehensible का meaning होता है hard to understand.
तो इंटेलिजेंट कोई सेंस नहीं करता, ये दोनों इसके सिनोनिम्स है. ट्रांसपेरेंट ओनली बिकम्स द सोल राइट ऑप्शन. ओके, select the option that can be used as one word substitute. Okay, for that you need to learn these things. One word substitution थोड़ा रटने पड़ेंगे, otherwise it's very difficult to handle. Person who is difficult to please, ऐसा इंसान जिसको बहुत मुश्किल से impress किया जा सकता है. Who is that person? Impartial का meaning आप मुझे बताएंगे comment में, what is the meaning of impartial? ठीक है. सो इम्पार्शियल अगर हम बोलते हैं द पर्सन इज इम्पार्शियल और आई एम इम्पार्शियल पर्सन, व्हाट डज इट मीन? लाइक आई डोंट लाइक टू डिस्क्रिमिनेट, राइट? आई एम नॉट पार्शियल पर्सन, मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता चीजें. सो आई एम इम्पार्शियल, आई डोंट लाइक टू डिस्क्रिमिनेट, राइट? फिकल, फिकल मीनिंग क्या होता है? एनीबॉडी वांट्स टू टेल मी दैट? फिकल. So fickle, fine. See, fickle meaning like it is again an adjective. An adjective होता है, for example, if I say I have a fickle friend, it means एक ऐसा बंदा जिसके कमिटमेंट्स पे मैं रिलाई नहीं कर सकती. Who keep changing his emotions or statements. ठीक है. चंचल in Hindi we can say. Okay. What's the meaning of this word? Fastidious. Fastidious is see, fastidious is a person who does not love to be pleased so easily. उसको मनाना is like बहुत पापड़ बेलना. तो yes, it makes sense here. Fastidious person who is very difficult to please. But what is this word then? You should know the meaning of this word. Right. So the person who is difficult to please, it means fastidious. Okay, this is the answer of ours. लेकिन एक word है यहाँ पे, punctilious, right? Punctilious is a word where हम एक adjective के बारे में बात करते हैं जो एक obsessed है perfection को लेके, right? So the person who loves to do perfect things, उसका obsession है सब कुछ perfect हो, writing perfect हो, report perfect हो, dressing perfect हो, job perfect हो, everything should be perfect. So hence these are the adjectives for the people where fastidious makes sense for this uh, sentence. Let's take the answers. Fastidious refers to the person who is very particular, demanding, or difficult to please, especially when it comes to the details of the quality. Like there are few bosses, ऐसे किसी boss से relate करो जिनको हर चीज में बड़ा डिटेल चाहिए. If you are submitting a project to him, वो एक एक चीज बारीकी देखेंगे. ठीक है? The person is very fastidious. Moving back to the comprehensive type questions. So I'll give you 5 seconds to think about these blanks. Following passage, some words have been deleted. So आपको filling the blank यहाँ पे game खेलना है. Let me find कि आप कितने accurately fill ups कर पाते हो. The pandemic has dash a systematic shift in the way we work. I just give you 10 seconds to think about these options. और सोचने के बाद एक गेस वर्क करो कि कौन सा करेक्ट हो सकता है ऑप्शन. फाइन. इफ यू हैव गॉन थ्रू द ऑप्शंस, देखो इनिशिएटेड होता है स्टार्ट करना, डिमिनिश्ड होता है बिल्कुल कम कर देना, पॉज होता है रोक देना, और फ्यूल्ड होता है कि और अच्छे से चलाना. ठीक है? फ्यूल्ड, फ्यूल मीनिंग तो आप समझ ही रहे हो फ्यूल किस लिए हम यूज करते हैं, राइट? सो द पैंडेमिक हैज paused a systematic shift in the way we work. Pause कर दिया क्या? If you have witnessed the pandemic period, you may have got to know that how many different options now we could explore. कितने options खुल गए हैं. तो उसने fuel किया है हमारे work सिस्टम को, ना कि उसने पॉज किया है, डिमिनिश किया है या इनिशिएट किया है. इनिशिएट तो हो ही नहीं सकता बिकॉज वी वर वर्किंग बिफोर ऑल्सो. डिमिनिश नहीं किया है, कम नहीं किया है. यस, इट वॉज हार्ड बट इट वॉज नॉट लिमिटेड.
Hence fuel is the right option for us. Okay. Next, blank 2. For many people, remote work has become a new normal. So now, as I said, the pandemic has fueled the work culture we had. Abhi to remote work or work from home, something is very popular term, right? Or people love to work from home. So अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो dash. This shift to remote work has brought its own set of challenges. If you can see here the formation of the sentence कि यहाँ पे plus and minus sentence कुछ है कि हाँ for many people remote work has become the new normal कि भाई positive change क्या है कि few people now have options like remotely working, this option they have. However, ठीक है, उसी के ऑपोजिट में इस शिफ्ट की वजह से क्या हुआ है कि अपने ही काम के जो चैलेंजेस है उसमें हमें प्रॉब्लम तो आई है. पंचुअलिटी इशू, यू नो, डेडलाइन ओरिएंटेड इश्यूज जो हमारे होते थे वो अभी भी हैं और वो ज्यादा हो गए इवन वर्क फ्रॉम होम से. सो दैट्स अ थिंग. आई बिलीव इट्स अंडरस्टूड टू यू. सो इसमें देखो नेवरदलेस हम किस लिए यूज करते हैं. नेवरदलेस वी यूज टू कंपेयर टू ऑप्शंस और हाउएवर वी यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट. एक वर्ड होता है बट, इसका डायरेक्टली सिनोनिम होता है हाउएवर. ओके, एडिशनली हम एक एडिशनल डिटेल नहीं बात कर रहे हैं, हम तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर की बात कर रहे हैं. सो इन दोनों में से हमको चॉइस करना होगा, या तो नेवरदलेस या हाउएवर. तो नेवरदलेस वी यूज डिस्पाइट के फॉर्म में, हालांकि के फॉर्म में हम नेवरदलेस यूज करते हैं और बट के फॉर्म में हम however यूज करते हैं. That's why however makes more sense here. Here, however. Okay, moving to the pandemic has. Okay, sorry, third it is. Where's the third here? Many people have found it difficult to dash a work-life balance, reconcile, abandon and adapt का meaning क्या होता है? I will give you time to learn about these words. Adapt means क्या होता है? Adaptation तो पता ही होगा आपको. adapt कर लेना, adaptation यानी अपना लेना या उस चीज में ढल जाना. Reconcile का meaning क्या होता है? Just who would like to tell me? Reconcile. And what's the meaning of abandon? See, if I talk about abandon, it means पूरी तरह से छोड़ देना उस चीज को. आप you can't take that thing again and again. For example, if we say abandoned house, like you left that house लिविंग इन, आप नहीं जाने वाले उस घर के अंदर. यू अबैंडन अ पर्सन, आप उसको दोबारा नहीं अपनाओगे. ठीक है. एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिकंसाइल? रिकंसाइल इज मींस किसी चीज से बहुत जल्दी, एक वर्ड आपने सुना होगा मूव ऑन करना, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना किसी चीज से. ठीक है. तो नाउ बिकॉज वी हैव मीनिंग ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, लेट्स try to relate. Many people have found it difficult to what? Reconcile, आगे बढ़ जाना वर्क लाइफ बैलेंस से. नो. अबैंडन वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे अबैंड कर पाओगे आप? अडेप्ट वर्क लाइफ बैलेंस व्हेन वर्किंग फ्रॉम होम. हो सकता है अडेप्ट भी हो सकता है कि भाई उनको तो काफी प्रॉब्लम आई ना, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस लाइफस्टाइल को. बट मेंटेन मेक्स मोर सेंस हियर. मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस एक कोलोकेशन होता है, मेंटेनिंग लाइफ बैलेंस, राइट? सो आई बिलीव बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर एक्सप्लेनेशन आपको मैं दिखाऊंगी, कहाँ गया मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल. ठीक है, नंबर 3 में अगर हम रिकंसाइल को देखते हैं, रिकंसाइल इट मीन्स मूविंग ऑन. ठीक है, रिकंसाइल कर लेना. टू रिकंसाइल इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स टू फाइंड अ वे टू बैलेंस. नाउ अगर हम रिकंसाइल को ऑप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू से व्हाट? फाइंड अ वे टू बैलेंस, राइट? अब बैलेंस करने के लिए, बिकॉज वी हैव अनदर बेस्ट ऑप्शन विच इज गिवन हियर, विच इज मेंटेन.
तो हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे ऑलवेज, बिकॉज मेंटेन हैज द accurate option here which is given, or it is a collocation also कि we have to maintain the work life balance, so maintained work life balance what we can. अच्छा एक चीज, wait, here I have to say one thing. I have now two choice, either I pick maintain or I choose reconcile. देखो दोनों करेक्ट है। इसमें बताऊं एक प्रॉब्लम क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू, जब हम टू के साथ कोई भी वर्ब फॉर्म करते हैं ना, वो फर्स्ट फॉर्म में होता है अपने। मेंटेन वॉज द सुटेबल ऑप्शन हियर, बट ईडी नहीं लगता अगर इसमें, तो डिफिकल्ट टू मेंटेन होना चाहिए था, मेंटेन्ड नहीं। सो दैट्स व्हाई वी विल ऑप्ट दिस रिकंसाइल एज ऑप्शन। अभी भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेंटेन है अगर ये डी नहीं होता तो, बिकॉज ये टू के साथ एक फॉर्म ऑफ ग्रामर में अगर हम देखें तो ये एरर काउंट होगा फिर, ठीक है। जैसे आपने कभी भी सुना होगा टू हेल्प, टू गेट, टू नो, टू नोन नहीं सुना होगा, राइट, विच इज द रॉन्ग थिंग, दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इज सी। ओके, फोर्थ ब्लैंक, दिस इज फोर्थ। Additionally, remote work can be lonely. Sorry, what's that? Yeah, additionally, remote work can be lonely and dash. लोनली का मीनिंग तो आइसोलेट होता है, एप्रोप्रिएट वर्ड देखना है, तो लोनली से पेयर कर रहा है वो, तो भाई आइसोलेट हो सकता है हमारा एक वर्ड, क्राउडेड तो होगा नहीं। फेस्टिव क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फेस्टिव, और एडवेंचरस तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ स्टंट देयर, राइट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फेस्टिव? फेस्टिव हम बोलते हैं ना, फेस्टिव सीजन इज देयर, it means something which is joyful, right, where you are happy to do something. Can be lonely and isolated. Isolated we can pick as option because बाकी तो मुझे लगता है कि सेंस नहीं कर रहे हैं। क्राउडेड वो वर्क है नहीं, फेस्टिव होगा नहीं, एडवेंचरस भी नहीं होगा क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ स्टंट हियर। लेट्स सी द ऑप्शंस। या isolated. Fifth, so fifth says to overcome these challenges it's important to establish a routine and stick to it as much as possible. Stick, routine बनाओ, उस पर stick हो जाओ। For work from home you have to be self disciplined. Alter होता है change करना, change नहीं करना आपको रूटीन को, आपको उसके साथ stick रहना है। Forget भी नहीं करना, ignore भी नहीं करना, stick is the right option. Okay, passive voice. Select a passive voice from the given sentence. She baked a cake for her friend birthday. So what is the main clause here? Sorry, it means what is the subject? She baked, verb, a cake. This is my direct object. For friend's birthday तो indirect object है, additional detail है। She baked a cake main चीज है हमारा, main sentence. So you have to check a cake is given, right? क्योंकि ये past indefinite form में दिया हुआ है sentence. She baked a cake, which is V2 here. Past indefinite का अगर passive आपको पता है तो क्या बनता है? Was were बनता है, right? उसके बाद V3 लगता है हमारा। तो वी हैव टू चेक, अ केक वॉज लिखा हुआ है, ठीक है, बेक्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें सेंस चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि ग्रामेटिकली एरर तो है नहीं इसमें। अ केक वॉज बेक्ड, अ केक वॉज बेक्ड, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट अब यहाँ से हमें यहाँ से चेक करना है कि क्या सेंस कर रहा है।
अ केक वॉज बेक्ड फॉर हर फ्रेंड बाय हर। बाय हर हमेशा जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसमें, पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम, बिकॉज शी इज द सब्जेक्ट ऑफ माई एक्टिव सेंटेंस, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो लास्ट में आना चाहिए वो आना चाहिए शी। इसीलिए बर्थडे कैन नॉट बी द डायरेक्ट यू नो, बर्थडे तो यहीं पर ही एक ऑब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट बनेगा ना कि ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो हमें इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और प्लेस करना है, दैट्स व्हाई बी वी विल ऑप्ट एज द राइट ऑप्शन। सी फ्रैंकली सेइंग अनटिल अनलेस आप पढ़ोगे नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस और द पैसिव एक्टिव्स को, आपको समझ में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई गो थ्रू वंस द यूजेस एंड द rules of it, then you can relate it better. In the previous question, B was the correct option of ours. ठीक है. The coach gave his team an inspirational pep talk about the match. So it's very highlighted word क्या है इसमें? This. देखो, कोच का काम है मोटिवेट करना, इंस्पिरेशनल, पहले एक पॉजिटिव वर्ड इंस्पिरेशनल, तो वो बोरिंग तो हो नहीं सकता। हाउएवर हम लोग एक अपने रियल लाइफ में इंस्पिरेशनल स्टोरीज को बोरिंग मान लेते हैं, बट इट्स नॉट द सेंस हियर इन द ग्राउंड, ठीक है। इन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड अगर आप चीजों को देखोगे तो वो ऐसे नहीं होता। इंस्पिरेशनल इट मीन्स वो मोटिवेशनल होती है, डिप्रेसिंग नहीं होती, डिस्करेजिंग नहीं होती, तो मोटिवेशनल बिकम्स द राइट ऑप्शन। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स इज एन ईडियम, इसका मतलब होता है रिवीलिंग अ सीक्रेट, ठीक है। To release, no, it's not the correct option. Reveal information that was meant to be kept secret. Yes. To expose someone's wrongdoing. No. No. B is the right option. एक ऐसा सीक्रेट जो कि छुपाया गया था काफी लंबे समय से, उसको रिवील कर देना, इट मीन्स टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। द पेशेंट वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल ड्यू टू द लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन। देखो, वैसे क्या होता है, हमारा जो टर्म्स होते हैं उसमें हम रेफर करते हैं जब पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो इम्प्रूव नहीं होती, ठीक है, तो हम रेफर करते हैं। बट रेफर दूसरे केस में भी होता है, जब हॉस्पिटल के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते तब भी वो रेफर करते हैं केस को, राइट। सो इन मेनी केसेस, इफ यू हैव सीन 99% केसेस की जब बात हाथ से निकल जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट्स, अगर वो नहीं बच पाएंगे अब तो उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं कि नाउ यू कैन गो होम, राइट। सो बिकॉज उनको पता है कि हमारे पास ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो दे हैव टू डिस्चार्ज द पर्सन, दे कांट कीप हिम, और दे कांट इवन रेफर द पर्सन, क्योंकि रेफर में उनको प्रॉब्लम तो पता हो। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और कैंसर का कोई ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में नहीं है, तो वो रेफर कर सकते हैं टू द अनदर हॉस्पिटल सो दैट द पर्सन कैन बी ट्रीटेड। बट व्हेन दैट पर्सन इज नॉट शोइंग एनी इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन, तो उसको डिस्चार्ज ही किया जाएगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। तो लेट्स सी द आंसर्स। Discharge is the right answer here because it suggests that patient was released, sent home from the hospital. उसका meaning होता है discharge. Okay, choose the word that can be used as one word substitution. A person who is skilled in many areas. ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा skilled होता है हर एक चीज में. For example, there is a person good at marketing, sales and front office, back office, सारे काम उसको आते हैं. इनमें से I just give you 10 seconds to think about these all words. Go do Google, let me know the meaning of these words. Write down in the comment, ठीक है. Comment में जब आप बताओगे, then you can eliminate the option which is wrong. I give you first chance. Okay, time stops. So how would you eliminate the option? See, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग बोल रहा है, बहुत सारी स्किल्स उस बंदे को आती है. We will pick the words those show you
the attributes of the personality. Multi means what? So many things. Omni means what? हम बोलते हैं ना, God is the omni power, like only one, सर्वज्ञ kind of. So see, multifaceted is the option that we can choose. Otherwise polymaths में तो हम ऐसे word को मतलब ऐसे इंसान को हम choose कर सकते हैं polymaths में, जो पर्सन रिच हो नॉलेज में, उसको मैथ्स का बहुत अच्छा नॉलेज हो, रिच नॉलेज हो, राइट? बट इट इज अबाउट मैथ्स. टॉकिंग अबाउट, सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग, पॉलीमैथ्स. पॉलीमैथ्स एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है द पर्सन हैज वाइड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. वाइड नॉलेज यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग वो हर चीज की. दिस एडजेक्टिव tells about a kid or a student has you know, so this word is about a student or a kid who is, you know, more than average. Uski understanding, his intelligence is always more than average. Prodigy. And this word omni associates with the person knowing everything. So हम डीप अंडरस्टैंडिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे की बात भी नहीं कर रहे हैं जिसको हम मोर देन एवरेज एक स्टैंडर्ड दे पाए. हम ओमनी सर्वज्ञ की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पर्सन हु कैन डील विद मेनी एरियाज. मल्टीफैसेटेड is the right option. Now, if you read this, word can be used one word substitution. Who is skilled in many areas? See, many areas में तो skilled है वो, तो multifaceted हम word को use करेंगे. Reason क्यों use करेंगे? क्योंकि वो जो person है, he has understanding of multiple things. ठीक है. But अगर हम polymath को use करते हैं, polymath, it means a person who has wide understanding. तो हम वाइड अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये गलत है यहाँ पे. मल्टी फैसेटेड आएगा इसमें आंसर. ठीक है. द पर्सन हैज, however polymath person has expertise in and the knowledge of the wide range of subjects, but skillful की हम बात कर रहे हैं जो कि मल्टी फैसेटेड है. ठीक है. ओके. द the chef adds a pinch of salt to enhance the flavor of the dish. Enhance means क्या होता है? What do you understand by? Is it deteriorate or simplify or intensify or amplify? Deteriorate का meaning क्या होता है students? Deteriorate, what's that? Simplify is you have to look for the antonym. Enhance का antonym क्या होगा इसमें? If you see this sentence, it tells you कि pinch of salt add किया गया है टेस्ट को रिच करने के लिए, बेकार करने के लिए नहीं. राइट. Deteriorate is a word that we use to make things worse. Simplify, intensify, amplify. सिंप्लीफाई तो होता है नॉर्मली उस चीज को एक एवरेज में लाने के लिए. इंटेंस वर्ड से आप समझ रहे हो. इंटेंसिफाई, एम्पलीफाइड यानी कि उस चीज को थोड़ा सा यू नो
लाइक उसका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये दो वर्ड्स का यूज होता है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ. Yeah, if you read the explanation here, enhanced, एंटोनिम आपको चेक करना था, राइट? तो शेफ ने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया टू एनहांस, उसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए और टेस्ट अच्छा करने के लिए. सिंप्लीफाई द वर्ड एनहांस मीन्स टू द कॉन्टेक्स्ट. अगर आप देखोगे, द वर्ड एनहांस मीन्स टू इम्प्रूव. एनहांस मीन्स तो होता है इम्प्रूव. इंटेंसिफाई का मीनिंग भी क्या होता है? इम्प्रूव होता है. इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द वैल्यू. इंटेंसिफाई, टोल्ड यू, इंटेंस इट मीन्स उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, उससे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए. Given sentence, chef has added a pinch of salt to add flavor in the dish. Antonym would be simplify. Why the simplify? देखो, the last option है, D option है, that we can't pick क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बेकार करने के लिए है. सिंप्लीफाई का मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स, लाइक थोड़ा सा इन हिंदी फाई से उग्र टेस्ट, यानी कि कुछ लोगों को नमक थोड़ा तेज पसंद होता है. To simplify it means उसको एवरेज से थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए उसका टेस्ट. द पर्सन हैज एडेड द पिंच ऑफ सॉल्ट. ठीक है, which means to make some less complex और easy to understand. It means उसका टेस्ट को ऐसा करने के लिए जो कि कम लोगों के लिए डिसेंट रहे, not for all. So पूरी तरह बर्बाद नहीं किया उसने डिश को अपनी. डिटोरिएट तो हम नहीं कर रहे हैं, but yes, simplify we can opt as answer. Hope it is understood to you.